So let us start with next question. Question number 14th. A transverse wave is described by the equation y equal to y0 sine of 2 pi ft minus x by lambda. The maximum particle velocity is equal to 4 times of wave velocity if. You should know that they are telling you Vmax is 4V. When you talk about Vmax, ये Vmax क्योंकि वो स्ट्रिंग का हर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये Vmax वो पार्टिकल का Vmax होता है. आपको पता है दिस इज ए ओमेगा. 4 टाइम्स ऑफ v, ये v होता है वेव वेलोसिटी विच इज फ्रीक्वेंसी टाइम्स ऑफ लैम्बडा, तो ये होता है f लैम्बडा. ओके राइट, और यहाँ पे दिया है f, इसलिए f लैम्बडा लिख रहा हूं मैं. करेक्ट. देन यू नो दिस a फ्रॉम इक्वेशन इज y नॉट. इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ये y नॉट होगा. ओमेगा होता है 2 पाई टाइम्स ऑफ f. दिस इज 4f लैम्बडा. करेक्ट. f कैंसल आउट, वन जा एंड टू जा, तो आपको मिलेगा लैम्बडा इज इक्वल टू पाई वाई नॉट बाय 2. तो पाई वाई नॉट बाय 2 इज ऑप्शन नंबर बी. तो इट वाज दिस सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड. फॉर अ पर्टिकुलर साउंड इन एयर अ पाथ डिफरेंस ऑफ, मतलब डेल्टा एक्स या फिर डेल्टा 40 सेंटीमीटर बोला है, दैट इज ऑफ कोर्स 14 × 10⁻² मीटर, इज इक्विवेलेंट टू फेज डिफरेंस, मतलब डेल्टा फाई आपको दिया हुआ है, दैट इज 1.6 पाई 1.6 पाई, और आपको पूछा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव. यू शुड नो दैट डेल्टा फाई फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस राइट. तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. तो वंस यू नो दिस, आपको ये दिया हुआ है 1.6 पाई, ये दिया हुआ है आपको 2 पाई अपॉन लैम्बडा, एंड दिस इज 40, मतलब 14 × 10⁻². गुड. हमको चाहिए फ्रीक्वेंसी. हमको पता है फ्रीक्वेंसी का रिलेशन v इज इक्वल टू n लैम्बडा होता है, तो लैम्बडा v बाय n होता है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट कैंसिल इट आउट. दिस इज बेसिकली 1 जा 0.8 जा, ये 0.4 है, तो 1 जा एंड 2 जा. गुड. तो ओवरऑल आपको मिला लैम्बडा इज इक्वल टू हाफ, सब सॉल्व करने के बाद, और लैम्बडा यहां से है v बाय n इक्वल टू हाफ. तो v इज इक्वल टू, और n इज इक्वल टू 2v, n इक्वल टू 2v, तो 2 × 330 इज 660 हर्ट्ज. गुड इनफ. तो ऑप्शन नंबर सी. So I don't understand कि why you weren't able to solve such questions, because ये बहुत simple सा question. Okay. Next question. Two vibrating tuning forks producing progressive waves given by y1 is equal to 4 sine of 500 pi t and y2 is equal to 2 sine of 506 pi t are held near the ear of a person. So दोनों tuning fork, they are producing different amplitudes, they are producing different frequencies, and they are held near the ear of a person. If number of beats heard per second is b and the ratio of maximum to minimum intensity is a, then which one of the following option is true? You should know always that number of beats heard is the difference between the two frequencies. Good. तो यहां से आपको मिलेगा ओमेगा 1 which is 500 pi
मतलब यहाँ से आपको मिलेगा n1 in short, so you will get n1 from here because omega 1 is 500 pi and this is 2 pi n1 which is 500 pi. So 1 and 250 जा. Similarly second equation से आपको omega 2 मिलेगा 506 pi, मतलब 2 pi n2 506 pi, मतलब n2 is 253 in short. Number of beat is the difference in these two frequencies. और इसी को उन्होंने बोला है B according to the question. Number of beats heard is B, but number of beats heard is difference in the two frequencies, that is equal to 3, क्योंकि 253 minus 250, तो B की वैल्यू आ गई 3. ऑप्शन ए या बी में से एक होगा इन शॉर्ट. एंड मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी को ए बोला है, तो ए इज आई मैक्स बाय आई मीन, एंड यू ऑलरेडी नो दैट दिस इज a1 plus a2 upon a1 minus a2 bracket squared. तो a1 is 4 and a2 is 2, है ना. पहले का एम्पलीट्यूड कितना है 4, दूसरे का कितना है 2, तो 4 plus 2 6 upon 4 minus 2 2 का स्क्वायर, तो 3 square is 9. तो b3 and a 9. This is how you are supposed to solve this question. Right? Good. A motorcycle starts from rest and accelerates along a straight path at 2 meters per second square. Acceleration दिया है. At the starting point of the motorcycle, there is a stationary electrical siren. So motorcyclist, let us say, is starting from this point, and there's electrical siren here. Let us say this is an electrical siren here at the starting point. How far has the motorcycle gone when the driver hears the frequency of siren 94% of its value? Okay, तो मतलब frequency apparent is 94% of real frequency. So Na by n is 94 by 100, and it was obvious कि Na by n will be less than 1 क्योंकि here listener is going away from source, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो apparent frequency कम होगा. ये expected भी था, तो हमको ये तो मिल गया. Now you are supposed to find out how far the motorcycle has gone. कितना दूर गया, डिस्टेंस. एक्सेलरेशन दिया है, गुड. तो एक्सेलरेशन दिया है आपको, ओके, एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट डिस्टेंस, एंड द लिसनर दैट इज मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. तो क्या करेंगे इस केस में? इस केस में कुछ नहीं है. इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, v माइनस वी एल अपॉन वी. वाई माइनस? because listener is going away from the source, apparent frequency will be less than actual, numerator will be less than denominator, और source rest पे ही है तो denominator में vs नहीं आएगा. Is it clear up to this point? पक्का? गुड. तो ये सॉल्व करेंगे और आपको 330 दिया ही है v, तो पहले तो उसको सॉल्व करो. तो you will get 100v minus 100vl is equal to 94v. मतलब आपको मिलेगा 6v is equal to 100vl. मतलब vl is 6v by 100, that is 6 into 330 by 100. गया 3 is 5 is 99 by 5. ये आ गया वेलोसिटी ऑफ द लिसनर. अब आपको VL मिल गया है. हमको पता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as है. L L L
दैट्स इट एंड एल। हमको पता है मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब u 0 है, वी एल का स्क्वायर है तो 99/5 का स्क्वायर है। वैसे आई विल टेक इट टू बी 100/5, रफली अप्रोक्सीमेटली 100/5, मतलब अप्रोक्सीमेटली 20। क्यों? क्योंकि मुझे कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करना है। तो 20 स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इज 2 बोला है, एस एल तो फाइंड ही करना है। 400 अपॉन 4, तो रफली 100। दिस इज रफली 100, रफली 100 मतलब ऑप्शन नंबर बी 98। अगर मैं 99/5 स्क्वायर करता तो फिर मुझे एग्जैक्ट आंसर मिलता, which I don't want to do. That's why. So this is how you can solve this question. Okay? तो ऐसा आंसर मिलेगा आपको 100 मीटर। A police car moving at 22 meter per second chases a motorcyclist. The policeman sounds his horn at 176 hertz. Velocity of या फिर real frequency is 176 hertz. While both of them move towards a stationary siren of frequency 165 hertz. Calculate the speed of motorcyclist if it is given that the motorcyclist does not observe any beats. यहाँ पे source chasing listener ऐसा केस है। Policeman is moving at a speed of 22 meter per second, blowing a horn at 176 hertz. Okay, this motorcyclist is moving with a speed v which we are supposed to find it out. स्टेशनरी सायरन है और जो मोटरसाइकिलिस्ट है उसको बीट्स सुनाई नहीं देते। व्हाट डज दैट मीन? Yes, yeah, exactly. So what he said is apparent frequency of the police horn as heard by motorcyclist and stationary सायरन का जो फ्रीक्वेंसी है वो एग्जैक्टली सेम होगा। बीट्स कब सुनाई देते हैं? जब देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज। स्टेशनरी साइलेंट तो स्टेशनरी है, उसका फ्रीक्वेंसी 165 हर्ट्ज है। पुलिस के हॉर्न का फ्रीक्वेंसी 176 हर्ट्ज है, राइट? ओके, गुड। तो नो बीट्स का मतलब होता है नो बीट्स mean here apparent frequency of police horn and apparent frequency of siren as heard by motorcyclist is same. Apparent क्यों apparent? क्योंकि motorcyclist is moving, इसलिए apparent। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, you just need to know how to solve this. Good. तो in any case you must at least know what is the right hand side apparent frequency of siren, क्योंकि siren यहाँ पे सोर्स है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? मोटरसाइकिलिस्ट के लिए मोटरसाइकिलिस्ट इज लिसनर, siren is source which is at rest. Motorcycle is moving towards source, listener moving towards, distance is reducing. इसका मतलब v plus v of listener upon v into frequency of siren बराबर। apparent क्यों लिखूंगा फिर मैं वहां पे? real frequency of siren. Good, good. Only thing is that आपको लेफ्ट हैंड साइड समझना इंपॉर्टेंट है।
लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे V माइनस BL मतलब मोटरसाइकिलिस्ट अपॉन V माइनस V सोर्स। सोर्स कौन था यहाँ पे? पुलिस हॉर्न इनटू फ्रीक्वेंसी एज इमिटेड बाय पुलिस हॉर्न। अब ये दोनों माइनस माइनस क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 8 केसेस बनते हैं, उसमें से 6 केसेस हमने डिस्कस किए थे, 2 केसेस पेंडिंग रखे थे। मैंने बताया था न्यूमेरिकल में आएगा। व्हेन सोर्स कौन? पुलिस हॉर्न ब्लो कर रहा है ना। व्हेन सोर्स इज चेजिंग लिसनर तो फॉर्मूला ऐसा बनता है, दोनों माइनस माइनस। व्हेन लिसनर इज चेजिंग सोर्स तो दोनों प्लस प्लस आएगा। वो ऐसा क्यों होता है? It depends on the direction of velocity. It depends on sign convention as you using optics, right? तो उसमें आपको conventionally ऐसा बताना पड़ेगा कि this is source chasing listener, both moving in positive direction. दोनों का velocity positive और जनरल फॉर्मूला ही ये है। दिस इज जनरल फॉर्मूला। तो Vs पॉजिटिव VL पॉजिटिव तो ओवरऑल नेगेटिव नेगेटिव। उल्टा मैं जब बोलूंगा, जब मैं उल्टा बोलूंगा लिसनर चेजिंग सोर्स बोथ आर मूविंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू इमेजिन, और जरूरी नहीं है, ये वन वे है ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। There is one way of understanding the question. Okay? तो यहाँ पे हम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से ये फॉर्मूला बनाते हैं। गुड। तो यहाँ पे अब आपको ऑलरेडी पता है V is speed of sound in air, that is 330 minus VL। L दोनों ही केस में मोटरसाइकिलिस्ट है, उसका स्पीड कितना? 22। करेक्ट? नहीं नहीं, पूछा है एग्जैक्टली। अपॉन V माइनस 22, क्योंकि हॉर्न कौन ब्लो कर रहा था? पुलिस। उसका स्पीड कितना था? 22। फ्रीक्वेंसी 176 बराबर। पुलिसमैन का फ्रीक्वेंसी कितना? 176। V इज 330, यहां पे भी 330 आएगा, प्लस VL फाइंड करना है अपॉन 330 अगेन इनटू दिस इज 165। करेक्ट? गुड। सॉल्व करो। 330 माइनस VL, 330 में से 22 गए, 308, 176। ये तो 1 जा आई 2 जा बराबर। तो 330 प्लस VL बाई 2, 1 जा 154। What is this? कोई है क्या कॉमन मल्टीपल दोनों 2 छोड़ के? ट्वेंटी टू 5 जा 110, 22 6 जा 132, 22 7 जा 154, 22 8 जा 176। राइट? गुड। ये मैं 330 इंटू 8 नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? मुझे नहीं करना इसलिए नहीं करूंगा। 330 इंटू 8 ऐसा लिखूंगा, माइनस 8 VL। 330 इंटू 7
प्लस 7VL। अब मुझे कैलकुलेशंस में इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने ये सब नहीं किया, बिकॉज अदरवाइज कैलकुलेशंस थोड़े से लंबे हो जाते हैं। बिकॉज हियर आई नो दैट इज इट इज 330 इंटू 8 माइनस 330 इंटू 7 मतलब 330। ये 330 इंटू 8 और 332 इंटू 7 में डिफरेंस, गुड, ये आ गया 15VL। तो आपको मिल गया VL इज 330/15। 15 10 जा 15 20 जा 300 22 जा मतलब करेक्ट 1 जा 22 जा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, इन्होंने यहाँ पे ठीक है मेथड सेम दी है, कैलकुलेशंस नहीं किए हुए, इट्स ओके। तो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन? पुलिस का कितना था? 22। व्हीकल का कितना आया? 22। इसका मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? चेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, बट वन इज फॉलोइंग अदर, दैट इज ट्रू। पुलिस इज फॉलोइंग, एटलीस्ट फॉलोइंग, गुड। If there are more equal velocities, the apparent frequencies of both the there will be no bits if and only if source chasing the listener both are moving at same velocities। सायरन तो स्टेशनरी था ही, सोर्स मतलब मोटर, सॉरी लिसनर मतलब मोटरसाइकिलिस्ट इज मूविंग टुवर्ड्स सायरन। नो बिट्स मतलब बोथ शुड बी ट्रैवलिंग एट सेम स्पीड। ओके गुड। तो एक काम और करना, जो मैंने मॉड्यूल्स दिए हैं उसमें ऐसा डिफरेंट वैल्यूज का क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देखो एंड वेरीफाई फॉर योरसेल्फ। अगर वापस से पुलिसमैन का और मोटरसाइकिलिस्ट का स्पीड सेम मिला, मतलब एग्जाम में ये सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। गुड। तो ऐसे ट्रिक्स आप खुद तभी बना सकते हो जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब। A progressive wave is represented by 5 sine of 100 pi t minus 2 pi x, where x and y are in meter, t is in second, maximum particle velocity a omega। a omega, a तो 5 है, ओमेगा दिख रहा है 100 है, 100 पाई है, तो क्या था इसमें? कुछ नहीं था, खत्म। तो ये ऐसा जो क्वेश्चन बीच बीच में डाल देते हैं वो, और इसको सॉल्व कैसे करके देते हैं मैंने वो लिखा है बुक में वैसे, फॉर इफ समटाइम्स आई गिव यू सॉल्यूशन सेट, तो दे एक्चुअली मेक जोक्स। वो बोलेंगे वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट 500 पाई, ओके, कॉस ऑफ, बराबर ना, कॉस ऑफ डेरिवेटिव लोगे तो cos of 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स, ये मिल गया आपको वेलोसिटी। फिर बोलेंगे वेलोसिटी मैक्सिमम कब? जब cos की वैल्यू मैक्सिमम, cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1, तो 500 पाई। आर वी नॉट अवेयर ऑफ दिस? तो हो गया। एंड यू, आई वाज शॉक्ड टू सी कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। दिस क्वेश्चन वाज जस्ट लुक 5 into 100 pi, 500 pi a ओमेगा। तो ओपन बुक टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था। A tuning fork A of frequency 512 produces 5 bits per second when sounded with another fork B of unknown frequency. If B is loaded with wax, the number of bits is again 5 per second. The frequency of tuning fork B will be option number C.
मैंने रीजनिंग आपको बताया था, वी हैव सॉल्व्ड, दिस इज इन द सेम सेट, दिस इज सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। जिसने लास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर देखा है 33 मिनट्स एंड फ्यू सेकेंड्स, ओके, तो कंप्लीट देखना चाहिए था। A policeman blows a whistle with a frequency of 500 hertz. A car approaches him with a velocity of 15 मीटर पर सेकेंड। तो पोलिसमैन सोर्स हो गया, सोर्स का फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, कार अप्रोच कर रहा है, मतलब लिसनर मान लेता हूं कि है, पूरा क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं हम लोग। द चेंज इन फ्रीक्वेंसी एज हर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ द कार एज ही पासेस द पोलिसमैन इज, तो एज ही पासेस द पोलिसमैन इज, पास होने के बाद कितना उसको सुनाई आएगा। सबसे पहले पास होने के बाद, तो व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर दिस? मुझे ये बताओ, apparent frequency as heard by approaching vehicle, approaching V plus VL upon V into N, बराबर? Good. What is the formula for receding a car which is moving away from source? V minus VL. Do we know N? Do we know V? Do we know PL? पता है ना लिसनर, है ना, बराबर? अभी अप्रोच कर रहा है मतलब उसी स्पीड से बाहर, बोला है कि ऐसा स्पीड चेंज हो रहा है। हाँ नहीं, तो जिस स्पीड से आ रहा है उसी स्पीड से दूर जाएगा, तो फिर क्या आएगा ये 300 माइनस 15 अपॉन 300 इंटू 500, गया गया। दिस इज 2853 इंटू 5, 3 1 जा, 3 9 जा, and then 5 za. 95 into 5 is how much? 475। ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, क्यों? क्या बोला है? चेंज इन फ्रीक्वेंसी, तो आपको डेल्टा न्यू पूछा है, आपको ये नहीं पूछा कि व्हाट इज द न्यू फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो नहीं, दैट इज व्हाट वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, इसलिए तो मैंने पूछा ये। वापस पढ़ो क्वेश्चन। हाँ, तो एग्जैक्टली क्वेश्चन में ये बोला है, policeman blows a whistle with a frequency of 500, a car approaches him with a velocity of 15, change in frequency as heard by the driver। जब वो अप्रोच हो रहा था तब, और जब वो दूर जा रहा है तब, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का सब्ट्रैक्शन, तो अप्रोचिंग और रिसीडिंग का सब्ट्रैक्शन, तो ये आएगा 300 प्लस 15 अपॉन 300 इंटू 500, कैंसल कैंसल, 315 बाय 3 इंटू 5 ऑफ कोर्स, तो 4 प्लस 5 फैक्टर ऑफ 3 अगेन 105 इंटू 5, मैं आलसी हूं, मैं इंटू 5 नहीं करूंगा। व्हेन इट इज गोइंग अवे, v माइनस VL बाई V इंटू N, तो ये आएगा 285। अभी मैंने देखा था 300 माइनस 15 इज 285, 300 500 कैंसल कैंसल, 1 जा 95, राइट? तो मुझे पूछा है डेल्टा n, n1 माइनस n2। ऐसा n1 n2 क्यों? मुझे पता है जब अप्रोच करोगे तो ज्यादा सुनाई देगा एपरेंट, और जब दूर जाएगा तो कम। हाँ, तो मैंने जानबूझ के ये 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मुझे 5 को बाहर कॉमन निकालते आता है। 10 into 5 is 50 hertz, so 50 hertz is the
change in the frequency of vehicle when it is coming towards and when it is going away, right? Okay. An observer moves towards a stationary source of sound with velocity 1/5 of, so observer moving with 1/5 of velocity of sound. Percentage change in apparent frequency S. Moves away. Percentage change in any physical quantity here in N is apparent क्योंकि move towards, जब सोर्स ऑब्जर्वर सोर्स के पास जाएगा तो डिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब apparent is greater than actual, तो Na minus n upon n into 100 बराबर. I would prefer to write it as Na by n minus 1 into 100 because Na by n is V minus की plus VL by V minus 1 into 100 बराबर. करेक्ट. तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरा जवाब और इजी हो जाता है क्योंकि V प्लस VL माइनस V कैंसिल. हाँ, तो VL by V into 100, ये तो पता ही है. VL by V is how much? 1/5 into 100, 20%. 20% is the change. मतलब पहले 100 हर्ट्ज का अगर फ्रीक्वेंसी होगा ओरिजिनल तो apparent will be 120. अगर 200 होगा तो apparent will be 240. करेक्ट. तो ऐसा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. इजी क्वेश्चन था. A band playing music at a frequency U, मतलब original frequency is U, is moving towards a wall at a speed V suffix B है ये. ओके. तो बैंड है, ये towards a wall move हो रहा है. A motorist is following the band. There is a motorist which is following the band. मान लो ये motorist है M with a speed Vm. इसका speed V suffix B, इसका V suffix M. If V is the speed of sound, the expression for the beat frequency heard by a motorist is. आपको मैंने ये क्वेश्चन हाफ फॉर्म में बताया है. आपको पता है कि इफ यू रिमेंबर ऑफ कोर्स, वॉल पे जाएगा, वॉल से रिफ्लेक्ट होके मोटरिस्ट के पास जाएगा. ये हो गया वन सोर्स ऑफ साउंड, राइट. और एक साउंड डायरेक्टली बैंड से मोटरिस्ट के पास जाएगा. कंडीशन टू हैव beats is that you need to have two sources of sound. बैंड बज रहा है, सामने वॉल है, पीछे से मोटरिस्ट आ रहा है. मोटरिस्ट को दो सोर्सेस ऑफ साउंड सुनाई देंगे. क्यों? एक तो डायरेक्टली जो बैंड से जाएगा उसके पास, एक जो रिफ्लेक्ट होके हमने सॉल्व किया था कि नहीं. तो मैं ऐसा करता हूं, मैं बोलता हूं केस 1, डायरेक्ट from band, sound reaching motorist direct from band. NA, यहाँ पे क्या हो रहा है? मोटरिस्ट भी बैंड के पीछे जा रहा है और बैंड भी मूव हो रहा है. वो भी फॉलोइंग का केस बताया था मैंने, लिसनर फॉलोइंग. यहाँ पे गड़बड़ है. वहां पे उस केस में क्या था? सोर्स फॉलोइंग लिसनर. यहाँ पे लिसनर फॉलोइंग सोर्स है. तो लिसनर फॉलोइंग सोर्स मैंने बताया क्या अभी? V प्लस वी एल अपॉन V प्लस VS. L मतलब कौन? लिसनर मतलब कौन? मोटरिस्ट. सोर्स मतलब कौन? बैंड. तो मोटरिस्ट
और बैंड और फ्रीक्वेंसी कितना है u। हो गए 8 के 8 केस कंप्लीट हमारे। 6 पहले बताए थे, 7वां 2 क्वेश्चन पहले था, 8वां ये है। हो गया क्लियर, याद रहेगा फॉर्मूला? गुड। अभी आप बोल रहे हो याद रहेगा, तो लेट मी चेक। साउंड फ्रॉम वॉल आफ्टर reflected from wall, sound reaching motorist after reflection from wall। तो मुझे अब ये बताओ, आपको याद रहेगा ऐसा आपने बोला है, तो मुझे ये बताओ कि ये रिफ्लेक्शन होके जब आता है तो उसका फॉर्मूला क्या आया था? हम्म V plus VL by V into N1. V प्लस बी लिसनर मतलब मोटरिस्ट अपॉन V माइनस सोर्स विच इज बैंड। मैंने 2 केस में स्प्लिट किया था, सोर्स से वॉल पे जाएगा क्योंकि सोर्स वॉल की तरफ जा रहा है, सोर्स लिसनर की तरफ जा रहा है, तो वॉल पे जो फ्रीक्वेंसी जाएगा, अब वॉल उसी फ्रीक्वेंसी को रीइमिट करेगा। मतलब सेकंड, पहले केस में सोर्स मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, दूसरे केस में स्टेशनरी लिसनर, मतलब ये सोर्स है, स्टेशनरी सोर्स है, एंड लिसनर इज मूविंग टुवर्ड्स। क्लियर? into you, because you don't remember। पहला केस में डायरेक्टली बैंड से जा रहा है, वो केस अलग है। इस केस में वॉल से रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो इसमें भी 2 केसेस थे, बैंड से वॉल, वॉल से लिसनर, कंबाइन करने के बाद ये फॉर्मूला बनता है। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? पक्का? अब मुझे बताओ बीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? अभी पहले तो डिसाइड करो, n2 माइनस n1 या n1 माइनस n2। n1 माइनस n2, which one is bigger number here? n2, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस है। ओके, तो इन दोनों में ऊपर v प्लस वी एम इंटू यू है, तो v प्लस बी एम इंटू यू मैं कॉमन ही निकाल लेता हूं। सो इफ आई कैन टेक इट कॉमन, then you need to simplify this expression now। 1 अपॉन v माइनस वी बी प्लस नहीं माइनस 1 अपॉन v प्लस वी बी, क्रॉस मल्टीप्लाई v प्लस वी बी माइनस v माइनस माइनस प्लस, मतलब 2 टाइम्स ऑफ वी बी है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 2vb सर्वाइव करेगा और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस, तो वी स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर, 2vb v प्लस बी एम इंटू यू अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर। ऑप्शन सी। इससे पहले का जो केस था हमारा एग्जाम्पल था, वो सिर्फ केस 2 था, करेक्ट। यहाँ पे वो केस ऐसा था कि एक सोर्स है जो एक पहाड़ की तरफ जा रहा है, उससे पहले भी सेम एग्जाम्पल था, साउंड रिफ्लेक्ट होके आएगा, वो सोर्स के पीछे लिसनर है, दैट्स इट। उन्होंने बीट्स का कुछ नहीं पूछा था, यहाँ पे बीट्स पूछा है। बीट्स कहाँ से आएंगे? क्योंकि बैंड से डायरेक्टली भी तो साउंड जा रहा है ना, तो दिस इज हाउ यू गेट the equation of a progressive wave is given by।
5 sine 100 pi t minus 0.4 pi x, where y and x are in meter and t is in second. The amplitude of wave is 5, that is true. सही है ना, 5 मीटर है. वेवलेंथ इज 5 मीटर. मैं जब कंपेयर करता हूं तो ये होता है k, याद है क्या, y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स. तो k आता है 0.4 पाई, बट k होता है 2 पाई बाय लैम्बडा. 0.4 पाई कैंसल कैंसल, 1 जा एंड 0.2 जा. तो लैम्बडा इज 1/0.2, मतलब 10/2, मतलब 5 मीटर. मतलब ये भी सही है. द फ्रीक्वेंसी इज 50 गीगाहर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी मतलब पहले तो ओमेगा आइडेंटिफाई कर लूं. ओमेगा इज 100 पाई, ओमेगा इज 2 पाई एन, दैट इज 100 पाई. 1 जा 50 जा. 50 गीगाहर्ट्ज आया क्या ये? नहीं, ये सिर्फ 50 हर्ट्ज आया. ये करेक्ट नहीं है. द वेलोसिटी ऑफ वेव इज 250 मीटर पर सेकेंड. कैसे निकालते हो एन लैम्बडा? तो v इज इक्वल टू एन. एन 50 है, लैम्बडा लैम्बडा आपके पास 5 है, तो 50 इंटू 5 मतलब 250 मीटर पर सेकेंड. ये सही है. तो 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट. 1, 2 एंड 3 नो. 2 एंड 3 नो. 1 एंड 4 यस. राइट, ऑप्शन नंबर सी. गुड. अभी इन्होंने बोला है ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू सम टेक्स्ट बुक. आई थिंक एररलेस से लिया होगा मैंने ये. इसका मतलब दे आर टेलिंग यू कि जी नहीं होगा. सो अगर जी नहीं होगा तो आई विल से ऑल आर करेक्ट. ठीक है, अभी जो भी बुक से लिया होगा, आई डोंट रिमेम्बर बिकॉज दिस इज अ कंपाइल्ड डेटा फ्रॉम ऑल द बुक्स. आई डोंट रिमेम्बर कहाँ से लिया है मैंने. A simple harmonic progressive wave is represented by equation y is equal to 8 sine of 2 pi 0.1 x minus 2t. डरना नहीं, ये उल्टा देख के कोई फर्क नहीं पड़ता है. 0.2 pi x minus 4 pi t. At any instant, the phase difference between two particles separated by, मतलब पाथ डिफरेंस देके रखा है 2 सेंटीमीटर का है, मतलब 2 × 10⁻² मीटर का है. राइट, फेज डिफरेंस पूछा है. फेज डिफरेंस मतलब डेल्टा फाई विच इज 2 पाई बाय लैम्बडा into delta x. If I compare this equation with standard equation, this one, तो मुझे मिलेगा k is equal to 0.2 पाई, है ना. तो k is equal to 0.2 पाई, मतलब 2 पाई बाय लैम्बडा is equal to 0.2 पाई. 1 जा 10 जा, लैम्बडा is equal to 10. तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा की वैल्यू 10, डेल्टा एक्स की वैल्यू 2 into 10 पावर, करेक्ट. तो 1 जा 5 जा, ओके, 2/5. तो एक काम करूंगा, व्हाई टू डू दिस थिंग, आई विल से 4 पाई बाय 10 into 10 पावर 3. गुड. तो कितना आएगा ये आंसर? what is pi radian? 180 degrees. 1 जा 5 जा, okay. 2/5 into 180 into 10 power minus 2. 1 जा, how much is this? 30 30 36 36, तो 72. तो 10 पावर माइनस 2 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये लैम्बडा खुद भी सेंटीमीटर में है. तो फिर उसके लिए डेल्टा एक्स को भी मुझे या तो सेंटीमीटर में ही रखना पड़ेगा या लैम्बडा को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मतलब ये 10⁻⁻² का फैक्टर आना ही नहीं चाहिए. मतलब 72 डिग्रीज, मतलब ऑप्शन नंबर डी. गुड, सिंपल.
Two tuning forks have frequencies 380, 384. When they are sounded together, they produce 4 beats. After hearing the maximum sound, matlab wax, how long will it take to hear the minimum sound? Do you remember time period was reciprocal of n1 minus n2? Time period. This is 1 by frequency. Wax, फिर अगला वैक्स, उन दोनों के बीच का टाइम, तो 1/4, क्योंकि 384 माइनस 380 मतलब ये आ जाएगा आपका 0.25 सेकेंड्स। ये आ गया आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वैक्स टू वैक्स होता है ना, वैक्स वेन वैक्स वेन वैक्स वेन, वैक्स टू वैक्स 0.25, तो वैक्स टू वेन कितना, हाफ। क्यों? क्योंकि कैसे सुनते हो, लाउड साउंड वैक्स, नो साउंड वेन, फिर वैक्स फिर वेन। अभी ये 0.25 है तो ये 0.25 का हाफ होगा, 0.125 सेकेंड होगा। करेक्ट, इजी। "41 tuning fork are so arranged" स्टेट बोर्ड में कितनी बार ये क्वेश्चन आया है? पता होना ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों की बैच, एक्सेप्ट फॉर यू, ओल्ड सिलेबस का बैच था आपका, तो ये क्वेश्चन पिछले बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 बार आ चुका है। ऐसा टाइप का मतलब 41 tuning forks are so arranged मतलब n1 n2 n3 ऐसा 41 such that हर दो में 5 का बीट्स है, n41, correct, okay, when sounded with its near fork, of course, if the frequency of last fork n41 is double the frequency of first fork n1, then the frequency of first and last fork respectively are. हमको पता है n2 माइनस n1 कितना, 5 है ना, n3 माइनस n2 कितना, 5। मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, n3 माइनस n2, बट n2 तो मुझे मिला यहां से n1 प्लस 5, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना n1 प्लस 5 इक्वल टू 5, मतलब n3 माइनस n1 माइनस 5 इक्वल टू 5, मतलब n3 माइनस n1 इक्वल टू 10, मतलब 5 इंटू 2, फिर n4 माइनस n3 भी 5, बराबर, मतलब n4 माइनस n1, ऐसा सब सॉल्व करने के बाद, क्योंकि मैं n3 को क्या लिखूंगा, 10 प्लस n1, तो इसको सॉल्व करने के बाद समझ में आ रहा है ना, ये आई विल रिप्लेस n3 एज n1 प्लस 10, तो यहां पे आपको मिलेगा 15, मतलब 5 इंटू 3, बराबर, फिर n5 माइनस n1 इज 5 इंटू 4, करेक्ट। तो अभी मैं बीच का सारा हटा देता हूं, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व समथिंग। आई डोंट नीड यू ऐसा, राइट। तो जब मैं n41 लिखूंगा माइनस n1, तो 5, देखो यहां पे 2 तो यहां पे 1, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 41 तो यहाँ पे 40, बराबर, बट n41 is 2 times of n1, तो माइनस n1 इक्वल टू 5 for the 20, 200, मतलब n1 कितना, 200, तो n41 कितना, 2 इंटू 200 मतलब 400, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट, डन।
So we are done with this set of questions.